Then here calculation mistake is there. 25 into 6 what? 150. Here we will write what? 150. जब ये 150 हो जाएगा तो यहाँ पे भी 150 लिखना पड़ेगा and 250 minus 150 कितना हो जाएगा? How much? 100. So 150 and 100. This will be answer. Here calculation mistake was there. 25 into 6. 25 into 5, 125 plus 25, how much? 150. Okay, now next question is from NCERT. To make a saturated solution, saturated solution, 36 gram of sodium chloride, 36 gram of sodium chloride, that is NaCl, sodium chloride is dissolved in 100 gram of water, in 100 gram of water at 293 Kelvin, at 293 Kelvin. Find its concentration, at this temperature, find its concentration at this temperature. Now see here, हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसमें 36 ग्राम NaCl घुला हुआ होना चाहिए. कितना ग्राम वाटर में? 100 ग्राम वाटर में. Okay, so 100 gram water is what? Solvent, and 36 gram NaCl is what? Solute. Now we can find its concentration. जब तक बोला है हम लोग m by m ही निकालते हैं. Concentration, that is m by m निकाल लेते हैं यहाँ पे, is equal to, means सॉल्यूट का भी मास लेना है एंड सॉल्यूशन का भी क्या लेना है? मास लेना है. लेकिन सॉल्यूशन का मास तो पता नहीं है, पहले निकाल लेते हैं. गिवन लिख लेते हैं. Mass of solute is equal to how much? 36 gram, and mass of solvent, that is water, mass of solvent is equal to what? 100 gram. Therefore mass of solution will be equal to mass of solute plus mass of solvent, that is 36 plus 100, how much? 136 gram. Therefore concentration in terms of what? M by M or W by W percentage is equal to mass of solute by mass of solution and into क्या? 100. This will come how much? This will come how much? 26.47%. 26.47%. So, okay children, now I hope all these questions will help you to solve all other problems. Hello everyone. Today we will continue the chapter Is Matter Around Us Pure, and in this chapter we will see the topic Problems on Concentration and Solubility. Means हम लोग आज केवल क्या देखेंगे? कंसंट्रेशन पे एंड सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो once again what is solubility. How can we find the solubility of a given substance in a given solution or in a given solvent? Solubility, the amount of solute present in 100 gram of solvent, the amount of solute present in 100 gram of solvent in a saturation solution at that temperature.
सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉरी 100 ग्राम सॉल्वेंट होना चाहिए। 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। सॉल्युबिलिटी हमेशा 100 ग्राम में निकालते हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में निकालते हैं। सॉल्युबिलिटी हमेशा 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में निकालते हैं। सो solubility can be defined as the amount of solute present in 100 gram of solvent in a saturated solution at a given temperature. Because temperature को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उससे solubility क्या होगा, अफेक्ट होता है। Our first question is calculate the solubility of a solute. Calculate the solubility of a solute at 25 degrees Celsius if its 250 gram saturated solution containing 50 gram solute at the same temperature, that is 25 degree Celsius. हमें यहाँ पे क्या निकालना है, solubility निकालना है। तो solubility तो होता है क्या, mass of solute by mass of solvent into क्या 100, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे mass of solute कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। mass of ये क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन हमको सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, सॉल्वेंट से मतलब है। तो टोटल हमारा सॉल्यूशन का मास है 250 ग्राम। 250 ग्राम हमारा सॉल्यूशन का मास है, उसमें से 50 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट कितना ग्राम हुआ, 200 ग्राम। सॉल्वेंट कितना ग्राम हुआ, 200 ग्राम। सो सॉल्युबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो, mass of solute is equal to 50 gram mass of solution is equal to कितना ग्राम, 250 ग्राम mass of saturated solution कर दीजिएगा 250 ग्राम। therefore क्या, mass of solvent, सॉल्वेंट का मास। तो सॉल्यूशन में तो दोनों होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट दोनों। तो सॉल्यूशन में से माइनस कर देंगे, 250 माइनस कितना कर देंगे, 50। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज हाउ मच, 200 ग्राम। देयरफॉर क्या, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू हाउ मच, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू कितना करना पड़ेगा, 100। कितना होगा, 25%। सॉल्युबिलिटी हमारी कितनी आई, 25 में क्या है, 25 ग्राम है पर 100 ग्राम सॉल्वेंट। 25 ग्राम पर क्या, 100 ग्राम क्या ले रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट। यहाँ पे हमेशा सॉल्वेंट होता है। तो 25 ग्राम सॉल्वेंट, 25 ग्राम सॉल्वेंट घुल सकता है कितना ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में एट द टेम्परेचर व्हाट, 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम अमाउंट है 25 ग्राम। 25 डिग्री सेल्सियस पे 25 ग्राम ही घुल सकता है ये सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Our next question is question number 2. करा कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in what, 250 gram of water, 250 gram of water. What is concentration of, what is concentration, what is concentration of glucose
m by m। इसमें निकालना है m by m में निकालना है। सीधा क्वेश्चन, 10 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या हो गया सॉल्यूट इज डिजॉल्व इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट, 250 ग्राम वाटर 10 ग्राम ग्लूकोज, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन m by m। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है, किसका, ग्लूकोज का। नाउ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे मास निकाल लीजिए, किसका, सॉल्यूशन का, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कंसंट्रेशन जो होता है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ व्हाट सॉल्यूशन, ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, 260 ग्राम, 250 प्लस कितना 10, तो 260 ग्राम हो जाएगा। और हमारा ग्लूकोज कितना दिया हुआ है 10, m by m निकालना है ना हमें, तो ये मास लेना पड़ेगा, सॉल्यूट का भी मास लेना पड़ेगा एंड सॉल्यूशन का भी क्या लेना पड़ेगा, मास ही लेना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि ग्लूकोज का वो 10 ग्राम है एंड मास ऑफ व्हाट सॉल्वेंट दैट इज वाटर, ये कितना ग्राम है 250 ग्राम है। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच, तो 10 प्लस 250 दैट इज हाउ मच 260 ग्राम। हमें कंसंट्रेशन जब निकालना है वो m by m के फॉर्म में निकालना है, मींस सॉल्यूट का भी मास लेना है, सॉल्यूशन का भी मास लेना है। देयरफॉर कंसंट्रेशन C से भी डिनोट करते हैं हम लोग, C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज व्हाट, ये बाय मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज व्हाट 260 इनटू r, 100% में निकालना, दैट्स व्हाई 10 कैंसिल आउट, हाउ मच, इसको डिवाइड करें, 2 13 जा 2 5 10 5 कितना 50, 50 by what 13, 3 how much 3.85 what %। ये जो आया है वो m by m में आया, ये जो कंसंट्रेशन आया वो किस में आया है, किस टर्म में आया है, m by m। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 25 ग्राम ऑफ शुगर, 25 ग्राम ऑफ शुगर आर dissolved in 250 gram of water, in 250 gram of water, what is mass by mass percentage, what is mass by mass percentage of the resulting solution, of the resulting solution। फिर से यहां पे दे दिया है शुगर, शुगर क्या है सॉल्यूट है, वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का मास पता, सॉल्वेंट का मास पता, we can find the mass of what solution and we have to find mass by mass percentage, that is the same problem। So first of all we write mass of solute is equal to what 25 gram, mass of solvent that is water is equal to how much 250 gram, therefore mass of solution, mass of solution is equal to how much, so 25 plus what 250 that is how much 275 gram। therefore क्या निकालना है, what is the mass by mass percentage, m by m percentage is equal to amount of solute that is 25
by amount of solution, amount how much 275 and into 100. बताइए इसको 25 बन जाए 25 1 2 1 हो गया। इधर आइए 11 9 जा 99 1 0 9 9.09%. 9.09% will be the mass by mass percentage of this solution. अगर हमको इसी का निकालना होता क्या mass by volume percentage. If we have to find mass by volume percentage, then how can we find? Then volume of solution should be known. ये पता होना चाहिए because mass तो पता है, solution का volume नहीं पता, m by v नहीं पता। v कैसे निकालेंगे? तो volume is equal to r. Volume equal to mass by density. Volume equal to r mass by density. Density यहाँ पे solution का लेना पड़ेगा। तो solution की density क्या होगा? यहाँ पे given है क्या? नहीं। अगर हमें सोल्यूशन का डेंसिटी पता होगा तो हम लोग वहां से फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? मास बाय डेंसिटी, बिकॉज मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम निकालना होगा तो मास बाय डी, m बाय डी करना पड़ेगा, तो वहां से काम होगा। अभी हमारा मास बाय मास परसेंटेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्युबिलिटी दिमाग में रखना हम लोग को कि सॉल्युबिलिटी वी कैन फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस बट इन हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्वेंट? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सैचुरेटेड होना चाहिए, टेंपरेचर चेंज नहीं करेगा, एक ही टेंपरेचर पे हमको निकालने के लिए बोले तो हम लोग 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना घुला हुआ है उससे फाइंड कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी। 100 ग्राम सॉल्वेंट में how much amount of solute is present or dissolved, इसी से हम लोग solubility find करते हैं। Next question is question number 4. Question is 60 gram of common salt is present. 60 gram of what? Common salt is present. 60 gram of common salt is present in 500 ml. In 500 ml of its aqueous solution. Its aqueous solution. Aqueous solution is what? Solvent में हम लोग वाटर ले लेंगे। 500 ml of its aqueous solution. Calculate the mass by volume percentage. Calculate the mass by volume. That is m by v, mass by volume percentage of the solution, percentage of the solution. Okay, so here what is given? 60 gram of common salt. We have to find what? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मींस सॉल्यूट का मास लेंगे एंड सॉल्यूशन का क्या लेंगे? वॉल्यूम लेंगे, यही लेंगे ना, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो वी विल राइट हियर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaCl कॉमन सॉल्ट, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू हाउ मच? 60 ग्राम। कितना ग्राम दिया हुआ है? 60 ग्राम। एंड volume of solution, volume of solution 500 ml of its aqueous solution करा, मतलब इसमें सॉल्वेंट वाटर होगा, लेकिन हमें तो भाई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन का, तो हमें वॉल्यूम ही देना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? क्लियरली लिखा हुआ है 500 ml। Therefore what? Mass by V percentage, m by V percentage of solution is equal to what? How much?
60 by 500 into how much? 100. How much? 12%. How much? 12%. So 12% will be the answer. 12% m by v. हम लोग यहाँ पे जरूरी नहीं है लिखना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पहले ही लिख दिए m by v. सो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे बाई मास और बाई वॉल्यूम और m by v. वहाँ पे है इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Number 5. Calculate the concentration. Calculate the concentration in m by v. In m by v is mass by volume. If a solution of 50 ml alcohol 50 ml alcohol means ethyl alcohol, C2H5OH alcohol. Density is given here. Density is equal to 1.02 gram per ml. Okay, is present in 150 ml of water. See the question. Calculate the concentration in m by v. Means we have to take the solute in mass and solution in volume. If a solution of 50 ml alcohol यहाँ पे क्या हो जाएगा? Solute. अगर वो लिक्विड है, स्ट्रेट लिक्विड है, तो लिक्विड सोल्यूशन भी तो होता है. तो यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो हमारा लिक्विड फेज में है, लिक्विड स्टेट में है. 50 ml अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ वाटर. वाटर इज अ सॉल्वेंट, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी व्हाट? 150 प्लस 50 ना. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. दैट इज 50 प्लस व्हाट? 150, that is 200. 200 ये हमारा वॉल्यूम हो गया. लेकिन हमें वॉल्यूम सॉल्यूशन की किससे मतलब है? वॉल्यूम से तो मतलब है. सो व्हाई हियर डेंसिटी इज गिवन? m by v परसेंटेज निकालना है. यहाँ पे क्यों दिया हुआ है डेंसिटी? बिकॉज हमें सॉल्यूट का अल्कोहल का डेंसिटी दिया हुआ है कितना? 1.02 ग्राम पर ml. बिकॉज हमें सॉल्यूट का मास पता नहीं है. सॉल्यूट का क्या पता है? वॉल्यूम. सॉल्यूट का मास क्यों पता करें? क्योंकि हमें चाहिए m by v. मास चाहिए किसका? सॉल्यूट का. और वॉल्यूम चाहिए किसका? सॉल्यूशन का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर volume of solution, volume of solvent, volume of solute, volume of solute is equal to how much? 50 ml. Solute means here what? Alcohol. So volume of alcohol is equal to 50 ml. Therefore हमें मास चाहिए. मास बाई वॉल्यूम चाहिए, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट होता है, ये सॉल्यूशन होता है. तो सॉल्यूट का हमको मास चाहिए. Therefore mass of solute, mass of solute is equal to what? So mass equal to what? Volume into density. So volume is this and density is what? 1.02 ग्राम पर ml. ml कैंसिल आउट हो जाएगा. ये आया कितना? कितना ग्राम? How much? 50 into 1.02. तो ये 0.5 into 102 हो जाएगा. ये 51 ग्राम. How much? 51 gram. Okay. So mass of solute is equal to what? 51 gram. Now volume of solution, because हमें solution का क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए. Now volume of
solution is equal to volume of solute ये plus volume of solvent that is what 150, टोटल कितना हो गया 200 ml. Therefore क्या निकालना है मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन. Therefore C ब्रैकेट डाल देंगे m by v कंसंट्रेशन निकालना है लेकिन किस टर्म में मास बाय वॉल्यूम के टर्म में. So amount of solute that is 51 gram and by volume of solution that is 200 into कितना 100. इसको कैंसिल आउट करो, घटाओ इसको 25.5. हाउ मच आएगा 25.5. So m by v percentage will be about 25.5%. If in this question if we have to find v by v percentage, what अगर हमें यहाँ पूछता है m by v ने निकालिए v by v निकालिए तो सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेते एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया ही हमने. वॉल्यूम सॉल्यूट का लेते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100. इसी क्वेश्चन को हमको पूछता क्या है कि कंसंट्रेशन निकालिए लेकिन v by v के फॉर्म में निकालिए. तो क्या करते हैं सॉल्यूट का वॉल्यूम ले लेते ऊपर में, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते नीचे में कितना 200 इनटू कितना हो जाता 100. हाउ मच 225. हाउ मच 25%. लेकिन ये क्या आता v by v परसेंटेज आता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Calculate the concentration. Oh, same question. Calculate the concentration in V by V if a solution containing 50 ml of alcohol in 150 ml of water. Very easy. ये कितना आंसर आ जाएगा उसका 25%. तो क्वेश्चन नंबर 6 यही मार्क कर दिया है. Now question number 7. 2 ml of benzene. 2 ml of benzene. Benzene is a organic solvent. Formula C6H6. 2 ml of benzene. 2 ml of benzene. Benzene का फॉर्मूला क्या होता है वैसे C6H6. It's a hydrocarbon. 2 ml of benzene is present in 50 ml of its toluene solution. अब toluene क्या है तो बेंजीन के ऊपर में CH3 लगा दो toluene बन जाएगा. 11th क्लास में पढ़ना है. ये स्ट्रक्चर होता है toluene का. इसके ऊपर डाल दो CH3 तो ये हो गया क्या toluene. और सीधे खाली ऐसे में ड्रॉ कर रहे हैं. ये क्या है बेंजीन. 2 ml of benzene is present in 50 ml of its toluene solution. What is concentration of benzene in terms of V by V. In terms of what? V by V. No change is noted during mixing of two liquids. ऐसा कोई चेंज वहां पे नोटिस नहीं किया गया है मिक्सिंग के दौरान. अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेंजीन. ये कहां प्रेजेंट है 50 ml ऑफ इट्स टॉल्यूइन सॉल्यूशन. टॉल्यूइन के साथ इसका सॉल्यूशन बना हुआ है. तो सॉल्यूशन हमारा कितना हो गया 50 ml. सॉल्यूशन दिया हुआ टॉल्यूइन सॉल्यूशन मतलब टॉल्यूइन हमारा एक सॉल्वेंट हो गया होगा एंड सॉल्यूट क्या है बेंजीन. मींस ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है वो है बेंजीन प्लस टॉल्यूइन का. बेंजीन प्लस किसका
टॉल्यूइन का। ये हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। बेंजीन प्लस टॉल्यूइन इज इक्वल टू सॉल्यूशन। नाउ वी आर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, हमें निकालना है वैसे V by V, वॉल्यूम से मतलब है सॉल्यूट की भी वॉल्यूम से एंड सॉल्यूशन की भी किससे, वॉल्यूम से। तो सॉल्यूट का वॉल्यूम तो दिया हुआ है, सॉल्यूट का वॉल्यूम 2 ml एंड सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम पता है कितना, 50। तो इट्स वेरी इजी, मास नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ solute that is benzene is equal to 2 ml and volume of solution, here toluene solution is given how much, 50 ml. Therefore concentration in terms of what, V by V. See, in terms of what, V by V is equal to 2 by 50, V by V percentage, 2 by 50 into कितना 100, 5 to the 10, 2 to the 4, कितना परसेंट, 4%. So 4% will be the answer. 4% ये V by V आया है concentration. I think now all things are clear here. हम लोग आज के लिए क्या देख रहे हैं, problems on concentration and solubility. Okay. Next question is, that is question number 8. Number 8. What volume of ethyl alcohol? What volume of ethyl alcohol? What volume of ethyl alcohol and water must be added, must be mixed together to prepare 250 ml of 60% volume by volume solution, volume by volume solution of alcohol in water. See carefully. What volume of ethyl alcohol, that is C2H5OH, C2H5OH, ethyl alcohol and water. Water is a universal solvent. So here, which is a solute? Ethyl alcohol. Ethyl alcohol is also a liquid. Water is also a liquid. So this solution is liquid type solution. This solution is liquid type solution. But what volume of this and this must be mixed together to prepare 250 ml of 60% volume by volume solution of alcohol in water. That is
सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना ml है 250 ml, लेकिन इसमें से कुछ वॉल्यूम हमारा इथाइल अल्कोहल का होगा एंड कुछ वॉल्यूम किसका होगा, वाटर का होगा। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है 60%, बट कैसे, V by V मींस 100 ml में 60 ml प्रेजेंट है कौन, इथाइल अल्कोहल। 100 ml सॉल्यूशन में हाउ मच अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट, 60 ml present. So first of all we will write here as volume of solution is equal to how much, 250 ml. 250 ml. Now percentage दिया हुआ है V by V percentage, V by V percentage ये क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा एंड बाई वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन, नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंट नहीं करनी, कितना परसेंट दिया हुआ है 60 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मान लेते हैं V, सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है वॉल्यूम 250, कितना दिया हुआ है, हाँ 250 है, ठीक है, तो 60 इज इक्वल टू डिवाइड, अच्छा इनटू क्या कर देंगे 100, परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज दिया हुआ है तो इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, वी हैव टू फाइंड व्हाट V, तो 60 इनटू 250 एंड बाय कितना 100 इज इक्वल टू व्हाट V, V इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 ml। ये V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 250 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज नाउ हियर 130 ml, सो रेस्ट विल बी व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। एक तो ये आंसर आ जाएगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पहले लिखते हैं सॉल्यूट इज इक्वल टू हाउ मच 130 ml and volume of solvent, that is what, water, volume of solvent that is water is equal to what, तो टोटल कितना था हमारा 250 माइनस उसमें से करते हैं वाला 130, कितना होगा 0.532 211 120 ml, so this will be answer 120 and 130 दोनों को ऐड करके देखो 112 230 20 250 ml, ठीक है, 250 ml हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ था। सो